Students of class first year, you are welcome here on the MG platform, and today we are going to start our book Hornbill, and the first chapter of the book is The Portrait of a Lady, which is written by खुशवंत सिंह। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज चैप्टर के बारे में और राइटर के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। माय सन्स, यू शुड नो दैट खुशवंत सिंह was born on 2nd February 1915, and he was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, and this book was made into film in 1998, which became his most well-known novel. प्यारे बच्चों, 2 फरवरी 1915 को पैदा होने वाले खुशवंत सिंह भारतीय लेखक हैं। हालांकि इनकी जन्मस्थली आज के समय में पाकिस्तान में पड़ती है। इनकी जो सबसे फेमस रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के ऊपर लिखी गई है, ये नॉवेल है, ये उपन्यास है, और इस उपन्यास ने इनको बहुत ज़बरदस्त प्रसिद्धि दी। इस उपन्यास के कथानक पर फिल्म भी बनाई गई, जो कि 1998 में बनकर तैयार हुई। Actually, Khushwant Singh was educated in modern school, New Delhi, St. Stephen's College, and graduated from Government College, Lahore. He studied at King's College, London, and was awarded LLB from University of London. He was called to the bar at the London Inner Temple. After working as a lawyer in Lahore High Court for 8 years, he joined the Indian Foreign Service upon the independence of India from British Empire in 1947. He was appointed journalist in the All India Radio in 1951 and then moved to the Department of Mass Communication of UNESCO at Paris in 1956. These last 2 careers encouraged him to pursue a literary career. As a writer, he was best known for his trenchant secularism, humor, sarcasm, and an abiding love of poetry. He served as the editor of several literary and news magazines as well as 2 newspapers through the 1970s and 1980s. Between 1980 to 1986, he served as Member of Parliament in Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India. Khushwant Singh was awarded the Padma Bhushan in 1974. However, he returned the award in 1984 in protest against Operation Blue Star, in which the Indian Army raided Amritsar. In 2007, he was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India. The chapter The Portrait of a Lady is based on his personal story. It's something autobiographical. It is about his grandmother, and this chapter gives us a picture of a human relationship in a joint family. It is a factual description, a realistic account of how the grandparents give all their time, attention and love to the grandchildren. The description of the author's grandmother is deeply moving, with a touch of humor and poetry in it. She was so old that she could not be older. It was difficult to believe that she once used to play games as a child
and was even young and married. She seems to have stopped growing older. In the village, she was left alone with her little grandson. She was religious minded. She was all the time telling the beads of the rosary. She took the child to temple school. Inside, she read holy books. While returning home, she fed the village dogs. In the city, she began to feed the sparrows because she got a separate room to live and there were no dogs. In the last phase, she received the author warmly when he returned home from abroad. She sang his homecoming and beat the drum. She was taken ill and she died. Even the sparrows went into mourning and crowded around her dead body. Such was the lady with a noble soul. प्यारे बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह जी ने अपने दादी के ऊपर लिखा है। ये लेडी उनकी दादी ही हैं। यह चैप्टर मानवीय संबंधों को दर्शाता है कि एक संयुक्त परिवार में कैसे ह्यूमन रिलेशंस ग्रो करते हैं। एक्चुअली दादी का अपने पोतों से जो प्यार पनपता है वो किस तरह से अपने समुचित स्वरूप को प्राप्त करता है, इसी के बारे में खुशवंत सिंह ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अपने दादी के बारे में बताते हैं कि बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी वो। हर वक्त उनके उंगलियों में मनका दिखती थी जिससे वो उसको जपती रहती थी। वो खुशवंत सिंह को कैसे उस स्कूल में ले जाती थी जहाँ पर मंदिर भी था और खुशवंत सिंह पढ़ते रहते थे और वो मंदिर के अंदर बैठ कर के धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। वहाँ से लौटते समय गांव के कुत्तों के लिए वो साथ में रोटियां ले जाती थी और वो उन्हें खिलाती थी। लेकिन खुशवंत सिंह के पिताजी जब शहर में सेटल्ड हुए, उसके बाद खुशवंत सिंह और उनकी दादी शहर जाते हैं और शहर में जाने के बाद कैसे बदलाव आता है इन रिश्तों में, कैसा एक टर्न फील होता है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण खुशवंत सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शहर में जाने के बाद अब दादी को बहुत सारी चीज़ों से समझौते करने पड़ते हैं। वहाँ अब गांव के जैसे कुत्ते दिखाई देते थे और वो उनको रोटियां दिया करती थी, वो चीज़ नहीं है। इसके लिए दादी ने स्पैरोज़ को दाना खिलाने का काम शुरू किया। कैसे दादी इस कॉन्वेंट स्कूल्स की स्टडीज़ से आहत होती हैं जिसमें भजन आदि के बारे में नहीं बताया जाता और क्या क्या मोड़ आता है और कैसे अंतिम समय में दादी की मृत्यु होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में खुशवंत सिंह ने बड़े डिटेल्ड वे में इस चैप्टर में बताया है। जस्ट सी द लाइन, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। माई ग्रैंड मदर सब फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है और पूरा चैप्टर फर्स्ट पर्सन में है। यहाँ खुशवंत सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी दादी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जैसा कि सबकी दादी होती हैं, यानी वॉज एन ओल्ड वूमन, एक बूढ़ी सी महिला थी वो। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है जैसे चेहरों पर जो रिंकलिंग आ जाती है, झुर्रियाँ, उसको कहते हैं कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यानी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि 20 वर्षों से, फॉर 20 years, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, यानी जब से खुशवंत सिंह उनको देख रहे हैं, उन 20 वर्षों के दौरान से वो बता रहे हैं क्या कि सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। वैसी ही दिख रही हैं कि बूढ़ी सी, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई, ऐसी ही 20 वर्षों से वो दिखाई दे रही हैं। पीपल सेड, और लोग ऐसा बताते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो क्या थी, यंग थी, एंड प्रीटी, बहुत ही सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति यानी इनके दादाजी भी थे।
बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन दादी को देखने के बाद, उनकी उस बूढ़ेपन की स्थिति को देखने के बाद ये विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि वो कभी यंग थी, बड़ी सुंदर थी, क्योंकि अब जो लेखक देख रहा है उस उम्र के वजह से, उस झुर्रियों की वजह से, ही इज़ नॉट एबल टू जस्ट थॉट ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिज ग्रैंड मदर। वो मतलब वो कल्पना नहीं कर पा रहा है कि वो कैसी होंगी जब वो जवान होंगी। तो माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, इनके दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है, हंग अबव द मैंटल पीस, वो हैंग का सेकंड फॉर्म यहाँ बता रहे हैं कि उनके दादाजी की जो तस्वीर है वो बैठके में जो है अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। हाँ, मेंटल पीस के ऊपर हंग थी, लटकी हुई थी। बट दैट वाज इन द ड्राइंग रूम। कहाँ? बैठके में, ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, उनके सिर पर बहुत बड़ी क्या? टर्बन। टर्बन यानी पगड़ी, वियर का सेकंड फॉर्म वोर है। उनके सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके कपड़े कैसे? बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, तस्वीर में ऐसी दिख रही थी। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी लंबी, चूँकि सिख परिवार से होने के नाते यहाँ आप खुशवंत सिंह को भी देख सकते हैं कैसे उनके चेहरे पे दाढ़ियाँ आती हैं, वैसे ही इनके दादाजी के तस्वीर से प्रकट होती है क्या कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी लंबी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, वो ढके हुए थी क्या? द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। यहाँ बेस्ट पार्ट का मतलब अच्छे पार्ट से नहीं है, बेस्ट पार्ट का मतलब यहाँ मैक्सिमम पार्ट से है। यानी उनकी दादाजी की जो दाढ़ी थी वो लंबी थी और सफ़ेद थी, और वो उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को, मतलब मैक्सिमम पार्ट को कवर की हुई थी, यानी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और seeing the portrait of his grandmother, he just thinks that nearly he looked like 100 years old। तस्वीर से देखने से ऐसा पता चलता है कि वो तकरीबन इस तस्वीर में जैसा दिख रहे हैं उस समय उनकी उम्र 100 वर्ष से कम की नहीं रही होगी। He did not look the sort of person who would have a wife or children। और तस्वीर में जितना उनका ओल्ड एज दिख रहा है उस हिसाब से ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। He did not look the sort of person, ऐसे आदमी के रूप में वो नहीं दिख रहे हैं जैसे who would have a wife or children, जिनकी बीवी हो या जिनके बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके lots and lots of grandchildren, उनके पोते परपोते होंगे दुनिया भर के। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, और जहाँ तक इनकी दादी का जवान और सुंदर होने का प्रश्न है, द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये बड़ा ही रिवोल्ट पैदा करने वाला, बड़ा ही विद्रोह पैदा करने वाला विचार था, मतलब जिस पर बहुत ही मुश्किल से विश्वास हो पाए। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले। यूज टू जो पास टाइम की हैबिट होती है उसको प्रकट करने के लिए किया जाता है। बेटा चैप्टर लंबा है और इस वजह से थोड़ा सा तेज़ गति से हम लोग चल रहे हैं। आफ्टर ऑल, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी जस्ट थ्रू द व्हाट्सएप। यहाँ आप देखें, सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर इन लोगों को यानी खुशवंत सिंह को, इनके भाई बहनों को बताती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में जो सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो दादी अपने बचपन में एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सिम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। ऐसा वो कहने पर बताती थी, लेकिन ऐसा करना उनकी तरफ से ऑन हर पार्ट बड़ा ही विचित्र और अशोभनीय लगता था दादी को। दादी नेवर वांटेड टू डिस्कस दीज इशूज़। दादी इन सारी इशूज़ पर कभी डिस्कस करना नहीं चाहती थी कि वो कैसे खेलती थी बचपन में, क्या उन लोगों के मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट थे। इसको वो बड़ा अनडिग्निफाइड फील करती हैं। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि इन सबों की जिद्द पर, इन लोगों की जिद्द पर वो बताती थी, और ये लोग उनके बचपन की यादों को वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस एंड वी ट्रीटेड इट। जबकि ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ये ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ये लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे ये महान संतों की कहानियाँ हों
और हम लोग जो वो बताती थी इसको महान संतों की कहानियों की तरह बड़े ध्यान और गौर से सुनते थे। इन द नेक्स्ट पोर्शन जस्ट खुशवंत सिंह राइट्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कैसी थी, अब उनके फिजिकल प्रोपोर्शन के बारे में खुशवंत सिंह यहाँ बता रहे हैं कि वो कैसी थी। वो हमेशा से ही थोड़ी सी हाइट में छोटी थी, नाटी कट की थी, मोटी और स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी स्लाइटली मैंने होता है अ लिटिल, थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स मैंने बताया आपको झुर्रियाँ होती हैं, क्रिस क्रॉस का मतलब आड़ी तिरछी लाइनें, यानी उनका जो चेहरा था वो झुर्रियों की लकीरों से भरा हुआ था, हाँ, जो कि रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अभी मैंने बताया आड़ी तिरछी लाइनें रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर तरफ से हर तरफ जाती हुई उनके चेहरे पर बनी हुई लकीरें थी, वो दिखती थी। नो वी हैव सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और आगे कह रहे हैं कि हम लोगों को ये हमें विश्वास था कि जैसा हमने उन्हें देखा था वह हमें हमेशा से वैसी ही दिखती थी, हमेशा से वैसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। सो ओल्ड, बूढ़ी, एकदम इतनी बूढ़ी कि वह अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और ठीक इसी अपने अवस्था में वो 20 वर्षों से एकदम क्या थी, पड़ी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। आप देखेंगे यहाँ कि वह कभी बाहरी रूप से खूबसूरत नहीं रही होंगी, लेकिन वो मन से अत्यंत सुंदर थी। आप देख लीजिए, मन से सुंदर थी। इस बात को यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, फिजिकली तो वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन इस पर मुझे बहुत विश्वास नहीं होता, लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सदैव ही सुंदर रही होंगी। वजह क्यों? क्योंकि उनका नेचर, उनका बिहेवियर उनको यह एक्सेप्ट करने के लिए विवश कर रहा है। शी वॉज अ लेडी ऑफ गुड नेचर एंड दैट्स वाई राइटर वांट्स टू से दैट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड a poem, The True Beauty, in which poet writes, "He that loves a rosy cheek, a coral lip, or from a star like eyes does seek fuel to maintain his fire, as old times decay, as old times makes these decay. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, where these are not I despise, lovely cheek or lip eyes." यानी वो अपने नेचर की वजह से निश्चित रूप से शुरू से ही सुंदर रही होंगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। निश्चित रूप से वो शारीरिक रूप से सुंदर हों या ना हों, जबकि लोग बताते हैं, उस समय खुशवंत सिंह ने देखा नहीं था उनको, लेकिन उनके नेचर की वजह से ये बता रहे हैं कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा से सुंदर नहीं होंगी, क्योंकि उनकी सूरत को तो ये नहीं देखे थे कि कितनी सुंदर थी, लेकिन उनकी सीरत को देखते हुए ये कह रहे हैं कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, क्योंकि यही सही भी है कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, चीज बेजान पत्थर की मूरत हुई तो क्या। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosette। आप देख लीजिए कितने सही तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि वह पूरे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर, शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉट मैंने होता है धब्बा, स्पॉटलेस मैंने बेदाग, बेदाग सफ़ेद साड़ी में हॉवर्ड करती। हॉवर्ड का मतलब यहाँ देख लीजिएगा घूमते रहना, वो पूरे घर में सफ़ेद साड़ी में घूमती रहती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ कहाँ रखी हुई, अपनी कमर पर,
किस लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपनी झुकी हुई कमर को क्या कर सकें, स्टूप मन होता है झुकना, झुकी हुई कमर को, झुकी हुई वेस्ट को बैलेंस कर सकें। और दूसरा हाथ क्या था? एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज़ारी, और दूसरे हाथ से क्या करती थी? दूसरे हाथ से माला जपती हुई घूमती रहती थी, रोज़ारी को, उस मनके को जपती हुई घूमती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudible, that which is hard to be heard, जिसको आराम से सुना न जा सके, बड़ा मुश्किल से सुना जा सके। करेंगे उनके चांदी से सफ़ेद जो बाल थे और उनके पीले मुरझाए चेहरे पर बिखरे रहते थे, और उनके हाथ सदैव प्रार्थना वाले जो मंत्र होते हैं उन प्रार्थना वाले मंत्र के द्वारा उनके होठ हमेशा क्या हिलते रहते थे, बुदबुदाते रहते थे। फिर से देख लीजिए, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके जो सिल्वर जैसे सफ़ेद चांदी जैसे जो लॉक्स थे, जो लटें थी, वर स्कैटर्ड, वो बिखरी रहती थी, अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, बिल्कुल कहाँ? उनके पेल, पेल का मतलब पीला होता है, पकड़ मुरझाया हुआ होता है, उनके पीले मुरझाए हुए चेहरे पर ये चांदी जैसे सफ़ेद बाल बिल्कुल स्कैटर्ड अनटाइडली, बिल्कुल बिखरे रहते थे, और उनके होठ एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, लगातार क्या? कॉन्स्टेंटली मैंने कंटिन्यूसली होता है, मूव हिलते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, प्रार्थनाओं में उनके होठ हिलते रहते थे। ऐसी प्रार्थना जो कि इनऑडिबल होती थी, सुनाई नहीं देती थी, केवल होठों से बुदबुदाती थी वो। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, निश्चित रूप से ये कार्य बताते हैं कि वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कैसी थी? विंटर लैंडस्केप, शीतकाल में पर्वतों के प्राकृतिक दृश्य की भांति लगती थी। सी was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. वो आप देखें कि शुद्ध सफ़ेद शांति की प्रतिमा के समान, जो कि शांति व संतोष से भरी होती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एकदम शुद्ध सफ़ेद शांति की प्रतिमा के समान, जो कि ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट, जो कि शांति और संतोष से क्या भरी होती हैं, वैसी दिखती थी इनकी दादी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यहाँ राइटर ये बता रहे हैं कि मैं और मेरी दादी, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनके माँ बाप जब शहर को गए तो उनको उनकी दादी के पास ही गांव पे छोड़ के चले गए। When they went to live in the city and we were constantly together, और तब से ये दोनों लोग लगातार साथ साथ रहते थे। She used to wake me up, वो अक्सर मतलब हमेशा जगाया करती थी खुशवंत सिंह को, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए क्या करती थी? तैयार कराती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song, आप देख लीजिए, वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक ही सुर में बिल्कुल गाती रहती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बेड एंड ड्रेस्ड, कब? जब वो इनको नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड, जब कपड़े पहनाती थी, इन द होप, और ये संगीत, ये प्रार्थना वो गाती रहती थी इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि खुशवंत सिंह उनको सुनेंगे, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। बाय हार्ट माना होता है जबानी रख लेना, ताकि सुनते सुनते खुशवंत सिंह इसको जबानी याद कर लेंगे। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं इनके इन गीतों को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं इन्हें याद करने का कभी जहमत नहीं उठाया, याद करने की परवाह मैंने कभी नहीं की। देन शी वुड फेच वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, इसके बाद इनकी वुडन स्लेट, इनकी लकड़ी की तख्ती को, जो पहले ही वो धोकर वो पीला मिट्टी पोत करके रखी होती थी, वो ले आती थी,
अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक मिट्टी की दवात, एंड अ रेड पेन, और लाल कलम लेके आती थी, वो क्रिमिज वाला जो पहले बच्चे लेके जाते थे स्कूल। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी, और इसके बाद हैंड इट टू मी, वो खुशवंत सिंह को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और इसके बाद एक मोटी सी बासी चपाती यानी रोटी का नाश्ता करवाती थी। थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर, उस पर थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी फैला करके, और वो रोटी मोड़ के इनको दे देती थी, बासी रोटी नाश्ते के लिए। और इसके बाद वी वेंट टू स्कूल, और इसके बाद ये दादी और ये उनका पोता यानी खुशवंत सिंह, ये दोनों लोग स्कूल निकलते थे, चूँकि स्कूल छोड़ने जाती थी खुद ही वो अपने पोते को, खुशवंत सिंह को। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, अपने साथ कुछ और बासी रोटियों को वो कैरी करके ले जाती थी, अपने साथ ढो के ले जाती थी विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और ये कार्य किस लिए? क्योंकि रास्ते में कुछ गांव के कुत्ते मिलते थे, उनसे उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ चपातियाँ वो जो अतिरिक्त बनाती थी वो अपने साथ लेके जाती थी। आगे देखें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। बता रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी स्कूल में मंदिर भी था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो पुजारी जी होते थे वो हमें अक्षर का ज्ञान कराते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda, जब बच्चे समूह में प्रार्थना या अक्षर गाते हुए बरामदे के दोनों ओर कतारों में बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, समूह में बिल्कुल वो अल्फ़ाबेट या प्रेयर जब बच्चे दोनों ओर बैठ के गाते थे, तो माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उस समय जो है इनकी दादी अंदर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, बच्चे इधर प्रेयर करते थे, अल्फ़ाबेट सीखते थे, और दादी मंदिर के अंदर बैठ करके धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, यानी दादी का भी पूजा पाठ ख़त्म हो जाता था, इनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो दोनों लोग एक ही साथ घर आते थे साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और यही वो वक्त था जब विलेज डॉग इन लोगों से मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और साथ साथ वो कुत्ते पीछे पीछे घर तक आते थे, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस। वो उन चपातीस के लिए क्या लड़ते थे, गुर्राते थे ना, एक दूसरे से ये कुत्ते टकराते थे, और उन चपातियों के लिए ऐसा करते थे जिन चपातियों को वी थ्रू टू देम, जो हम उन लोगों की ओर फेंकते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जब उनके मम्मी पापा सिटी में बिल्कुल आराम से सेटल हो गए, तो दे सेंट फॉर अस, तो वो इन दोनों लोगों के लिए भी बुलावा भेजे। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यहाँ बता रहे हैं कि यही हम दोनों लोगों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था, ये टर्निंग पॉइंट बना। आई यूज टू गो, सॉरी देखेंगे, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे दादी और हम, अब शहर जाने के बाद से। लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब इनकी दादी इनके साथ इनको स्कूल छोड़ने नहीं आती। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब ये मोटर बस से एक अंग्रेजी स्कूल में जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते भी नहीं थे वहाँ शहर में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस,
अब उस सिटी में जो घर था वहाँ पर अब ये कुत्तों के न मिलने के कारण अब दादी जो है स्पैरोज़ को दाना खिलाना शुरू कर दी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। ज्यों ज्यों वर्ष बीतते गए वैसे वैसे दादी का और खुशवंत सिंह का मिलने का सिलसिला कम होने लगा। लेस। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो उन्होंने इनको सुबह जगाया और स्कूल के लिए तैयार कराने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, और जब ये स्कूल से आते थे तो वो पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर आज तुमको क्या पढ़ाया। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो ये इंग्लिश वर्ड्स बताते थे। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, कुछ पाश्चात्य सभ्यता की, विज्ञान की, सीख की, ग्रेविटी के नियम, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, और जो है दुनिया के गोल होने आदि के बारे में तमाम सारी सूचनाएं देते हैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे दादी बहुत ही दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब वो इनके लेसन्स में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ अब धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब धीरे धीरे चैप्टर जो आधुनिक बदलाव का स्वरूप है अब उस ओर जा रहा है, जो भागम भाग जिंदगी है उस ओर जा रहा है। देखिए कैसे मतलब अब दादी से मिलने का, बात करने का सिलसिला कम होने लगा। जैसे लेखक अब हमें इस ओर मोड़ रहे हैं कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु अब नज़दीक होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। बिल्कुल अब कटते चले जा रहे थे ये। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed। वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। and was distressed, और बड़ी दुखी थी that there was no teaching about God and the scripture, कि इन स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। One day I announced that we were being given music lessons। एक दिन खुशवंत सिंह ने दादी को बताया कि आज म्यूजिक का लेसन पढ़ाया गया। She was very disturbed। ये सुन के तो दादी बहुत व्यथित हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनकी नज़र में जो म्यूजिक का रिलेशन था वो निकृष्ट बातों से जुड़ा हुआ मामला था। हाँ, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। उनके हिसाब से ये जो संगीत है इस पर बेगर्स का, भिखारियों का अधिकार है, हैरलॉट्स का, प्रोस्टिट्यूट्स का, वेश्याओं का एक अधिकार है। ये जेंटल फॉक को, ये सभ्य व्यक्तियों को नहीं सिखाया जाना चाहिए, ये सभ्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। तुम आज ये सब क्या सीख के आ गए, गाना बजाना नाचना। हाँ, लेकिन शी सेड नथिंग। वो कुछ बोली तो नहीं, बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी खामोशी का मतलब वो इस पढ़ाई को अप्रूव नहीं कर रही थी, इसको समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कभार ही बात किया, ज़्यादा नहीं। बच्चों, आज वेल आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। यहाँ खुशवंत सिंह ये बता रहा है कि जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा, यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो अब जो ये दादी के साथ रहते थे, अब जब यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई, डिग्री लेवल की पढ़ाई शुरू किए तो इनका कमरा अब अलग हो गया। इनको अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और इसके वजह से द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो इनके और इनके दादी के बीच जो फ्रेंडशिप की कॉमन लिंक थी, जो दोस्ती की साझी कड़ी थी, वाज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब क्या? ब्रोक। वो टूट गए, खंडित हो। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। इनकी दादी ने अपने इस एकांतवास को स्वीकार कर लिया। विथ रिजिग्नेशन। रिजिग्नेशन का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप, शांतिपूर्वक।
एकदम बड़े ही चुपचाप मौन रूप में उन्होंने इस एकांतवास को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको भी पता था कि अब बच्चा डिग्री लेवल की स्टडी कर रहा है तो उसको अपना पर्सनल टाइम चाहिए। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब दादी अपने स्पिनिंग व्हील पर ही वक्त बिताती थी, अपने चरखे पर ही सूत काटने में अपना वक्त बिताती थी। किसी से भी बात करने के लिए शायद ही कभी वो उस व्हील को, सूत काटने की मशीन को, चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग। वो सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अपने चरखे के बगल में बैठी रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सूत काटती रहती और अपना मंत्रोच्चार किया करती, प्रभु का भजन स्मरण किया करती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल। केवल दोपहर में ही वह थोड़ा सा आराम करती थी चरखे को छोड़ करके, और वो भी आराम का सिलसिला क्या था, टू फीड द स्पैरोज। किस लिए? वो स्पैरोज को फीडिंग कराने के लिए उठती थी, वो गौरैयों को दाना देने के लिए उठती थी। वही एक वक्त था जब वो विश्राम लेती थी। वाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। बरामदे में बैठ करके ब्रेड को, रोटियों को बिल्कुल लिटिल बिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करती थी, तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। सैकड़ों पक्षियाँ उनके चारों ओर कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चॉपिंग चॉपिंग चहचहाट। वेरिटेबल बेडलॉम का मतलब बेहद तीव्र शोर, बहुत बड़े शोर को कहते हैं। और वास्तव में बहुत ही ज़्यादा शोर पैदा हो जाता था वहाँ, इतना ज़्यादा पक्षियाँ वहाँ चहचहाती थी। सम केम एंड पॉज ऑन हर लेग्स। कुछ पक्षियाँ उनके पैरों पर बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ दूसरी उनके कंधों पे बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ तो यहाँ तक कि दादी के सर पे बैठ जाती। से स्माइल्ड बट नेवर सूट देम। वो इससे बड़ा खुश होती थी, लेकिन उनको भगाती नहीं थी कि वो उनको तंग कर रही हैं। नो नो नो, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और खुशवंत सिंह यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यह आधा घंटा उनके लिए दिन भर में सबसे खुशी का समय। दिस वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ हर हैप्पीनेस व्हेन शी जस्ट फेड द स्पैरोज। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। यहाँ थोड़ा सा स्पैरो को पढ़ने के पहले मैं वो चित्र आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें दादी स्पैरोज को फीडिंग करा रही हैं। आप देखें यहाँ ये तस्वीर, कैसे कुछ उनके पैरों के पास इकट्ठी हो गई हैं। बिल्कुल ये स्पैरोज उनसे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं, और बगल में उनकी छड़ी भी यहाँ है, लेकिन कहीं कोई भय नहीं है पक्षियों को। ये पूरी तरह से इनके साथ बनी हुई है। अब आगे के स्वरूप को देखिए। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, कह रहे हैं कि जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षा दे करके, और जब आगे की पढ़ाई के लिए मैं अब्रॉड जाने लगा, अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज़ को जाना हुआ, विदेश जाना हुआ, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी एब्सेंट। तो मुझे एक बात पक्की लग रही थी कि मेरे विदेश जाने से मेरी दादी बहुत ही अपसेट होंगी, बहुत ही परेशान। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मुझे यह भी पता था कि मेरी पढ़ाई विदेश में, इनको पता था कि ये 5 years तक, 5 वर्ष तक ये वहाँ रहेंगे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनके इस उम्र पर कोई ये नहीं कह सकता था कि 5 वर्ष के लौट के आने के बाद वह जीवित ही रहेंगी। उनके बचने की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि 5 वर्ष तक इतनी ओल्ड एज में वो
5 वर्ष तक सरवाइव कर पाएंगी ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था, बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन जैसे दादी अपने जीवन के बारे में यह घोषणा कर सकती थी, उनको पूर्ण विश्वास था कि शी वुड जस्ट रिमेन अलाइव एंड शी वुड मीट हर ग्रैंडसन वंस अगेन आफ्टर 5 years. She was not even sentimental. वो तनिक भी भावुक नहीं हुई इनके जाने से। She came to leave me at the railway station. यहाँ तक कि वो खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए उनकी यात्रा के समय जब उनके मम्मी पापा आए तो दादी भी साथ आई स्टेशन पर छोड़ने के लिए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन न कोई बात की, न कोई भावात्मक प्रेम दिखाई। मतलब ऐसा इसलिए ताकि वो ये नहीं चाहती थी कि खुशवंत सिंह को किसी तरह का जो है भावुक प्रेम उनको विवश करे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। वो स्टेशन पर लगातार अपने प्रार्थना में लीन रहीं, उनके होठ हिलते रहे मंत्रोच्चार से, क्योंकि हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका ख्याल बिल्कुल ईश्वर से इसी प्रार्थना और दुआ में व्यस्त था कि उनके बच्चे की हिफाजत रखना। वाहेगुरु। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी। उनकी जो उंगलियां थी वो मनका को जपने में, उस माला को जपने में व्यस्त थी फिंगर्स। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। और तब बड़ी ही साइलेंटली, यहाँ चुपके से नहीं, जैसे बड़ी आहिस्ता से वो मेरे फोरहेड पर यानी खुशवंत सिंह के ललाट पर चुंबन दी, अपना आलिंगन दी। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और कह रहे हैं कि जब मैं स्टेशन छोड़ा, अपने ट्रेन से जब निकलना शुरू किया, तो दादी के इस चुंबन को आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट। इम्प्रिंट माने निशान, मॉइस्ट माने नम या गीला। एज द परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। इस मॉइस्ट इम्प्रिंट को, अपने दादी माँ के चुंबन के इस गीले चिन्ह को उन्होंने चेरिश कर लिया, सजो के रख लिया। किस रूप में? एज, इस रूप में परहैप्स कि शायद कहीं ये द लास्ट साइन हो, अंतिम चिन्ह हो, किसका? आप फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। हम दोनों के शारीरिक रूप से इतने करीब हो करके दादी के स्पर्श का शायद यह अंतिम चिन्ह हो, इसलिए उन चुंबन के रूप में उन गीले होठों की छाप जो इनके ललाट पर पड़ी थी, इसे इन्होंने अपने मस्तिष्क पटल में हमेशा के लिए कैद कर लिया और ट्रेन पर चल गए। आगे देखें। बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दादी बिल्कुल सही थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 साल के बाद ये घर आए। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और इत्तेफाक देखिए, दादी वहीं स्टेशन पर जहाँ छोड़ने गए थे उस जगह पर इनको रिसीव करने भी पहुंची। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एक दिन भी, जैसा देख के गए थे 5 साल पहले, उससे एक दिन भी ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। जैसे उम्र उनकी रुक सी गई हो उतना एकदम वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अब भी उनके पास बात के लिए वक्त नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। और जब खुशवंत सिंह को वो अपने गले लगाई तो खुशवंत सिंह बता रहे हैं, आई कुड हेयर, तो मैं सुन सका हर रिसाइटिंग प्रेयर्स। जो वो मंत्रोच्चार कर रही थी, वो बुदबुदाहट जब इनको अपने गले लगाई तो उस मंत्रों की बुदबुदाहट इनके कानों में सुनाई। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मेरे आने के पहले ही दिन, प्रथम दिन भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वर विथ हर स्पैरोज। वो इनके साथ नहीं, उन स्पैरोज के साथ ही गुजरा। हुम शी फेड लॉन्गर, बहुत लंबे समय तक उस दिन उन सबों को खिलाई। एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स,
उनको बीच बीच में डांटती भी थी गौरैयों को, हट इधर आ, है तुम खाओ, सब तुम ही खा ले रही हो, इसको खाने दो। ऐसे रिब्यूकिंग कर रही हैं, स्कोल्डिंग कर रही हैं, डांट फटकार रही हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेकिन शाम को दादी में उनके रोज़मर्रा के जो रूटीन ऑफ लाइफ थे उसकी तुलना में आज के शाम खुशवंत सिंह ने पाया कि कुछ चेंज आया, क्योंकि सी डिड नॉट प्रे। उस दिन वो प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के कुछ महिलाओं को बुलाई, गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लाई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरन्स। अब देख लें, कुछ घंटे तक, फॉर सेवरल आवर्स, वह उसे पुरानी ढोलक की ढीली पड़ गई चमड़ी को पीटती रही। वो डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब हो गया कि ऐसी ड्रम जिसकी स्किन जो है बिल्कुल ढीली ढाली हो गई हो, तो उस स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम को पीटती रही। और होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वॉरियर्स के, योद्धाओं के घर आने पर जो स्वागत गीत होते हैं, उस स्वागत गीत को उन पड़ोस की महिलाओं के साथ गाती रहीं। एक तरह से ये दादी का तरीका था कि वो अपने ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह के आगमन को सेलिब्रेट कर रही थी। वी हैड टू परसुएड हर, परसुएड माना होता है मनाना, समझाना। हम लोगों को दादी को समझाना पड़ा कि दादी टू स्टॉप, अब बंद करिए, इस उम्र में इस तरह से ढोल पीट रही हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रही हैं, ये ओवर स्ट्रेनिंग आपको देगा, चूँकि ये आपको तनाव में डाल देगा। इसलिए टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, इस तनाव को दूर रखें, वो इतना न ढोल पीटें, इतना न गाएं। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्ले। जब से मैं उनको देखा था, खुशवंत सिंह का, दिस वाज द फर्स्ट चांस व्हेन शी डिड नॉट प्ले। ये पहला ऐसा दिन था, पहला ऐसा मौका था जिस दिन उन्होंने शाम को भजन पूजन नहीं किया बल्कि गीत गाया। दिस वाज द फर्स्ट चांस। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इन, और अगले दिन सुबह दादी बीमार पड़ गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड, और डॉक्टर ये बताया कि इट वुड गो, बहुत जल्दी ये बुखार चला जाएगा। लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी कुछ अलग ही तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। दादी बताई कि अब उनका अंत समय करीब आ गया है। देखिए, जब विदेश जा रहे थे उस समय नहीं, उनको विश्वास था कि वो जिंदा रहेंगी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि मेरा अंत करीब है। शी सेड, वो बताई, दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके लाइफ के इस लास्ट चैप्टर के क्लोज होने के कुछ घंटे पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रेयर से अपने आप को ओमिट कर लिया था, वंचित कर लिया था। भाई भजन संध्या न करके गीत गाने के कारण उस दिन का उनका प्रेयर टूट चुका था। उसको लेकर के उन्होंने ये बताया कि चूँकि वो छूट चुका है, इसलिए शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। इसलिए वो हम लोगों से बातचीत करने में अपना तनिक भी समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। वो उस समय की भी भरपाई करना चाहती थी अपने प्रेयर से। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, वी प्रोटेस्टेड कि नहीं दादी ये सब छोड़िए, आप आराम करिए। बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो मानी नहीं, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, बिस्तर पर आराम से लेट गई, और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, उसी में अपना मंत्र पूजन चलता रहा उनका। क्योंकि आपने सुना होगा कि कह हनुमंत विपत्ति तब होई,
जब तब सुमिरन भजन, इसलिए अपने भजन को वो गाती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अभी हम लोगों को सस्पेक्ट होता, सस्पिशन होता, संदेह होता, उसके पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजारी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी निर्जीव उंगलियों से वो जो रोजारी था, मन का था, वो गिर गया। पीसफुल पैलर, बिल्कुल शांत पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम लोगों को पता चल गया कि अब दादी नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बिस्तर से नीचे उतारा। एंड एज इट इज़ कस्टमरी, और जैसी परंपरा है कि मर जाने के बाद आदमी को बिस्तर से हटा दिया जाता है और उसे ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, इसलिए उस परंपरा का निर्वहन करते हुए बिस्तर से उतार कर लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको हम लोग ज़मीन पर लिटा दिए। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड स्ट्रप, और उनको कवर कर दिए, उनको ढक दिए किससे? लाल रंग के कपड़े से, जो कि कफन, स्ट्राउड माने कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यहाँ पर वर्ड गलत छप गया है, ये मॉर्निंग छप गया है, जबकि वर्ड होना चाहिए मॉर्निंग, MOURNING, जिसका मतलब होता है वेल, विलाप करना, रोना। कुछ घंटे रोने धोने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हम लोग उनको अकेले छोड़े और चल दिए टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए। किसका? फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार की व्यवस्था। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को सारी व्यवस्थाएं करने के बाद हम लोग उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, वो स्ट्रेचर लेकर के जो है ये लोग पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की स्थिति, अब देखिए क्या दिख रही है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सन सेट हो रहा था, सूरज डूब रहा था, और बरामदा और उनके कमरे को ब्लेज चमका रहा था सूरज गोल्डन लाइट से, अपनी सुनहली रोशनी से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन के आधे में ही ये लोग रुक गए। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेट डेड, पूरे बरामदे में, कमरे में, और वहाँ तक जहाँ तक वो लेटी थी। एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड, और वो बॉडी, कठोर शरीर जो लाल कफन में लिपटा था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट, इन सारी जगहों पर, कमरे में, बरामदे में, उनके बॉडी के पास तक हजारों स्पैरोज बैठी थी, स्कैटर्ड, एकदम पूरे फर्श पर, पूरा बिखरी पर। देयर वाज नो चॉपिंग, लेकिन कोई चहचहाहट उस दिन नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, बड़ी दया आई पक्षियों को देखकर कि लग रहा है ये दाना तलाश रहे हैं, सब भूखी हैं सब, लेकिन इन सबों को पता नहीं कि दादी अब नहीं रही, इसलिए बड़ी दया आई इन पक्षियों पर। और फीलिंग पिटी, दया करते हुए उनकी जो मदर थी, फैचेड सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियां लेके आई पक्षियों के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, ठीक वैसे ही जैसे दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसको पक्षियों के आगे फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, क्या बात है, प्रेम की भाषा मौन होती है, यहाँ साबित हो रहा है। देखिए, पक्षियों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया उन टुकड़ों पर। When we carried my grandmother's corpse off, और जब ये लोग उनके डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, जो ही उठाए
दे फ्लू अवे क्वाइटली, ये पक्षियाँ चुपचाप उड़ गईं, कुछ नहीं बोली, जैसे ये संदेश देना चाहती हूँ शहर वालों को कि लुटा के खुद की रोशनी को कोई सूरज गरीब हुआ है। अरे शहर वालों जरा गौर से देखो, एक बंदा खुदा के करीब हुआ है, एक बंदा खुदा के करीब हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, अगले दिन स्वीपर आया और उन रोटियों के टुकड़ों को स्वीप करके साफ किया और साफ करके इनटू द डस्टबिन, वो कूड़ेदान में डस्टबिन में उन टुकड़ों को डाला। और इस तरह से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर समाप्त हुआ। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अब हम उसको अगले पार्ट में आपके पास प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।